आपके साथ. End of the story. My line for the debate is Meri Marzi. Ladies and gentlemen, tomorrow there is a Sanatan Dharm Sansad that is going to be held in the national capital. And why? Because if one side has the Waqf board, there is a demand for a Sanatan board. Let's debate. The chorus for a Sanatan board is echoing louder. Amid a pan-India Waqf land grab emergency, and with lakhs of temples still under the clutches of the state, the demand is clear. A body must be created to defend and reclaim historically owned lands of the Hindu community. And this is our legitimate right, and we want, if there is a Waqf board and other religious board, why not Sanatana board will be established in our country, though the main religion of our country is Sanatana. A Sanatan Dharma Sansad is set to be held in the national capital. हम सबको ये दर्शाता है कि सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो, और 16 को जो सनातन धर्म संसद हो रही है उसके बाद में कोई ऐसा निर्णय निकले जिससे हम सनातनियों का दर्द समाप्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो. Farmlands, national assets, and scores of sacred temples. Is it high time for a Sanatan board that will counter the Waqf board's unchecked authority? Viewers, tomorrow there is tomorrow a Dharm Sansad for a demand for a Sanatan board. With me in the debate, Mumtaz Alam Rizvi is with me tonight. Mumtaz Saab, and to his left is he's an Islamic scholar, and Haji Meherudin Rangrez, AIMIM official spokesperson. Rangrez ji, namaskar. Idhar dekhiye Rangrez ji, is taraf aaj hum is taraf baithe hain. And on my right is Acharya Raj Mishra, Vedic scholar, and Pawan Sinha, Hindu scholar. Pawan ji, is this a sustainable demand for a Sanatan board, or Sanatan board Q? Why should there be one now? Yes, it is definitely sustainable demand. The reason being that government is continuously acquiring most of the important temples, and we need that our money which is collected in the temple should be spent on the temple. There are many temples where we cannot pay to a pujari and to sweepers even. So we do not want official persons to be there, OSDs should be there. Hence this is a very valid demand, and we all stand by it. And is this is linked to Waqf board? Why is this coming up at a time when Waqf board is being discussed? Actually, the very area of Waqf board is very much different. They are acquiring the lands of other people, and we are asking for the development of Hindu Sanatan. Okay. Let me get a response here. What is your position on the demand for a Sanatan board? As an Indian Muslim, yes, we have no problem. The Sanatan board should be constituted, और ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये सही आपने क्वेश्चन किया कि जब वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, ये मामला पूरे देश में उठ रहा है, तब ऐसे वक्त में क्या ज़रूरत थी कि उसी वक्त जो है सनातन बोर्ड भी कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, वक्फ बोर्ड कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसलिए शायद हो रहा है. नहीं नाइंसाफ़ी हो रही है. कभी कोई आप बोलिए आचार्य जी, किसी मंदिर के ज़मीन को, किसी घर के ज़मीन को, किसी गरीब किसान के ज़मीन को, इतना तक कि आप लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी यू आर ऑल्सो टारगेटिंग. नहीं, आपने कहा कि संसद की ज़मीन भी हमारी है. नहीं तो क्या अब कल आप बोलेंगे स्टूडियो भी आपकी, हम आपकी है, मेरी घर भी आपकी है. ज़मीन बचाने के लिए बन रहा है. नहीं ये सब नहीं तो फिर हुकूमत किसके लिए? नहीं क्यों ना हो. नहीं, हुकूमत आप किसी और फिर दूसरी चीज, चलिए आप किसी भी हिंदू के मंदिर हो, घर हो, उसको उजाड़ के कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड. मौजूदा सरकार तो ये दावा कर रही कि हमने राम मंदिर बनाया है.
अभी योगी जी कह रहे हैं कि साहब हम जो है यहाँ मथुरा में भी बनाएंगे, काशी में बनाएंगे, इतने बड़े बड़े दावे हैं सब कुछ। तो फिर सवाल ये सनातन बोर्ड बनाती क्यों? आपको प्रॉब्लम उसके लिए नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या? आप हर बात पे कहते हैं। मैं चाहता हूँ आचार्य जी जवाब दे। आचार्य राज मिश्रा, प्लीज यू कैन हिंदी और इंग्लिश एज यू विश। तो सबसे पहले जरूरत सनातन बोर्ड की आज नहीं, मैं तो अर्णव जी एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, शायद इस हिंदुस्तान के अंदर कहने को इसको हिंदुस्तान कहा गया था। आप एक भी आज तक की फैसिलिटी आप बताइए, जब देश का बंटवारा धर्म के परिस्थिति पर हुआ तो क्या इस भारत वर्ष के अंदर वक्फ बोर्ड इंपॉर्टेंट था? क्या इस भारत के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंपॉर्टेंट था? या इस भारत के धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड इंपॉर्टेंट था? आप मुझे बताइए, था या नहीं था? लेकिन हुआ क्या? इस भारत का इस्लामीकरण किया करने का प्रयास किया गया। सनातन बोर्ड की अगर बात हो, सबके पेट में पीड़ा हो रही है, कोई दर्द नहीं, सनातन की कोई दर्द नहीं है। तो आपके लेकिन पेट में पीड़ा हो सरकार रही है। आपकी जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राम मंदिर बना तो सनातन बोर्ड के बगैर बना कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड के बगैर राम मंदिर बना कि नहीं? चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, ये बताइए भाई, राम मंदिर हो रही एक है मिनट, और राम मंदिर बना सनातन बोर्ड के बगैर बना कि नहीं बना? सनातन बोर्ड बनना चाहिए इस भारत के अंदर। कहां से आपको खतरा हो गया? यह भारत है, मंदिर मौजूद है, हर बांग्लादेश के अंदर, हर दफ्तर में बांग्लादेश के अंदर कह दिया गया पूरी सरकार आपके फेवर में यहाँ से हटाया जाएगा। अगर भारत के अंदर के 28 लाख दिए जलाए जाते हैं कहां पे? बगैर वोट के। सुन लीजिए, आपको तो गुंडों की तरह अधिकार दे दिया गया। वक्फ बोर्ड को तो गुंडों की तरह अधिकार दिया गया। जिसको मर्जी पर्ची दे दो भैया, ये अधिकार होता है। 15 साल पुराना गांव, एक सवाल, एक जनविल सवाल, एयरपोर्ट हमारा है, दूध का दूध पानी का पानी किए देता हूं। रामचरितमानस में दूध का दूध पानी का पानी क्लियर। मुझे लगता है, मुझे एक आचार्य जी जो बात मुझे लगती है कि अगर वक्फ बोर्ड ओवरडू नहीं करती, मेरी बात सुनिए रंगरेज जी, अगर वक्फ बोर्ड एक सीमा रेखा पे अपनी बात को चलाती, मगर जिस तरीके से जो भाषा आप यूज करें, आप करें गुंडों की तरह, वो तो मैं वो भाषा यूज नहीं करता, मगर आप कह रहे हैं जिस तरीके से एक लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए किसी गरीब किसान के घर पर नोटिस डाली जाती है कि ये जमीन आपकी नहीं है, निकल जाइए। आप कह रहे हैं एयरपोर्ट हमारी है, जमीन हमारी है, स्कूल हमारी है, देश हमारा है, तो सनातनी कहां जाएंगे? तौकीर राजा कहते हैं मैं मास कन्वर्जन कर दूंगा हिंदू लड़कियों का। आप कह रहे सरकार हमारी है, फिर कन्हैया लाल को खुलेआम दिन दिहाड़े 28 जून को बात कर रहा हूं, आपने कहा सर, नो आई एम अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज ऑन द 28th of June Kanhaiya Lal was beheaded in broad daylight in Udaipur because he put out a post in support of Nupur Sharma. Tawqir Raza says I will do mass conversion of Hindu women to Islam and conduct their nikah with their Muslim partners. There have been incredible instances of injustice, but the worst thing, and I want Rangresh ji to comment on it, how can the Waqf board overdo things by claiming other people's land as their own? And what did you expect Hindus to do? Be quiet and do nothing? अर्नब जी, जिस तरीके से एनआरसी का बिल लेकर जो सरकार आई थी वो हमारी नागरिकता छीनने का था। एनआरसी कॉन्स्टिट्यूशन, सुनिए, इसी और जमीन हमारी छीनना चाहती है, हम लगातार कह रहे हैं। अरे सर रुकिए, शांत होइए थोड़े। क्या हो गया? कुछ आपके बीच अरे चुप हो जाओ यार, प्लीज रुकिए, बात सुनिए। आप इधर देख के बोलिए, इधर कैमरे की तरफ। अर्नब जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि अर्नब जी का जो ये पूरा जो ऑफिस है, पूरा जो स्टूडियो है, कि ये वक्फ की संपत्ति है, अगर मैं ये कह देता हूं तो ये आप मेरी संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जाएगा केस। ट्रिब्यूनल में जाएगा? हम अपने ट्रिब्यूनल में आप ही नोटिस देंगे। आपने आपकी एक मिनट आपकी नोटिस, आपका डिमांड, आपकी सरकार नहीं है, वक्फ बोर्ड सरकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग हैं। ये लॉज नहीं चलेंगे ना, फिर हाई कोर्ट भी इनको चेंज करना, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, चेंज करेंगे। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मैंने बोल दिया कि ये अर्नब जी का जो ऑफिस है ये मेरा ऑफिस है, अगर मैं ये कहता हूं तो उसके लिए मेरे को कागज दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, मेरी बात आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इधर रंगरेश जी, माय क्वेश्चन टू यू इज, रंगरेश जी, look here, रंगरेश जी, look here.
Suppose you have a masjid, okay, and he is running Sanatan board. आप समझ लो, उल्टा पोजीशन कर लीजिए कि आचार्य जी सनातन बोर्ड चला रहे हैं, इसके चेयरमैन हैं और आपकी बड़ी मस्जिद है ना, और ये एक दिन आके उन्होंने नोटिस लगा दी कि ये मस्जिद की ज़मीन हमारी है, और आप बोलेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेरी ज़मीन है। फिर वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप ट्रिब्यूनल पे जाएंगे। आप बोलेंगे किसकी ट्रिब्यूनल, वो बोलेंगे हमारी ट्रिब्यूनल, सनातन बोर्ड की ट्रिब्यूनल। तो इन्हीं की नोटिस, इन्हीं का न्याय, इन्हीं की नहीं, बट आप कहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट राइट। ओके, रंगरेज जी रिप्लाई, रंगरेज जी विल रिप्लाई एंड पवन सिन्हा विल रिस्पॉन्ड। 2 स्टेट ऐसी हैं जहां पर उनसे जो हमारी वक्त की संपत्ति है उससे डबल संपत्ति है, दो स्टेट में मंदिरों के पास। मगर ये जो सुनिए सर, जिस तरीके से सनातन बोर्ड की बात हो रही है, ये इस तरीके से है कि ये चाहते हैं कि देश में जो है विभाजन वाली बातें हो। नहीं, सनातन बोर्ड क्या इससे पहले के जो हिंदू थे वो समझदार नहीं थे? आज के हिंदू समझदार हुआ था, किसी ने 2003 में हुआ था। आर्टिकल 40 को देखिए, वक्त की जरूरत क्या है? बारे में आपने कहा पहले के हिंदू। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रंगरेज जी, थैंक यू रंगरेज जी, वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting words used by AMIM spokesperson रंगरेज जी। ही से तब के हिंदू और अब के हिंदू। तो मेरी बात सुनिए, अगर पवन सिन्हा जी कहें कि तब के हिंदू और अब के हिंदू में फर्क यह है कि अब के हिंदू जागरूक हो गए हैं और जैसे आरएसएस कहती है सजग हो गए हैं, सजग हिंदू। जब भी हिंदू खतरे में है, सजग हिंदू, 100 करोड़ हिंदू खतरे में थे, हिंदू सजग होंगे, हिंदू सजग है। जब भाजपा की सरकार है, मोदी जी है, अमित शाह जी सजग, तो सजग है, हिंदू खतरे में सजग है। हिंदू पवन जी यू रिप्लाई, पवन जी हिंदू शांत रहा, अभी बोला नहीं, हमेशा भाईचारा निभाया, खतरा कहां से? एक इनकी बात सुन लीजिए रंगरेज जी 1 मिनट, अगर अटैकिंग होता तो मोदी और आरएसएस से खतरा है। जो थैंक यू एंड पवन सिन्हा इज रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ। पवन सिन्हा, हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये एक मिनट रंगरेज जी, जरूरत क्या है इस देश को? 1954 सनातन बोर्ड ड्रामाबाजी चल रही है, बोर्ड की जरूरत क्या है? यानी देश की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक चीज जानता हूँ, आप जो है बोर्ड का मतलब है मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमान को दान में दी गई प्रॉपर्टी। जैसे ही आप ये कहेंगे ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तो आप सुनिए रंगरेज जी लिसन टू हिम, 1 minute, listen to the other side, then come in, please let him speak. झूठ बोलते हैं सर। अच्छा, तो ये इन्होंने आपकी बात सुनी ना, इन्होंने आपकी बात सुनी ना, तो आप भी सुन लीजिए मान्यवर। की बात नहीं पड़ेंगे। ओके, थैंक यू। लिसन, कागजात 40 की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल कागज दिखाने पड़ेंगे। 2013 अगर हमारी अमेंडमेंट कागज दिखाएंगे तभी हमारी हो पाएगी, क्योंकि इस देश में न्याय प्रणाली है। आप जो कह रहे हैं कि ये हिटलर शाही, तानाशाही मुसलमानों की चल रही है, सजदा कर दिया उनकी जमीन, सजदे की बात ही नहीं करिए, वो तो नोटिस भेजते हैं मुसलमान का है तो मुसलमान, ऐसा नहीं है, ये झूठी बात है, ये झूठा प्रपोगंडा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपकी दर्शक सुन ले, आगाज होता है, भाइयां वो भी सुन ले, कोई भी ऐसी हम मुसलमान नहीं रहना चाहते जो हमारी ना हो, अगर हमारी होगी, हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे, बाद 2013 में आर्टिकल 40 लाया जाता है। आर्टिकल 40 मैं जो बोल रहा हूँ, आर्टिकल 40 बोल रहा हूँ, वहां सजदे की बात नहीं कर रहा हूँ, नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्टिकल 40 क्या कह रही है? और फिर मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, मैं हेलन हड्डी हूँ, मजबूत हूँ, पेट में दर्द तो वहां हो रहा है। तौकीर रजा से पूछे, तौकीर रजा के पेट में दर्द क्यों हुआ? ड्रामाबाजी कर रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं, ड्रामेबाजी हम अब नहीं सह रहे, हम ड्रामेबाजी नहीं कर रहे, हमने ड्रामेबाजी सहनी बंद कर दी है, अब हम ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। We oppose this bill, this amendment in 2013 itself। से लेकर संसद का घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। रंगरेज जी मेरी एक मिनट देखिए रंगरेज जी, लिसन टू मी। 1947 में वक्फ बोर्ड थी क्या जिस तरह से आज है? नहीं थी। तो मेरी बात सुनिए, तब भी हम एक स्वाधीन देश थे, है ना? ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड नहीं हो तो देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है। ये कई लोग जागीरदार बनना चाहते हैं, वो कहे कि वक्फ बोर्ड के नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कह रहे सनातन बोर्ड नहीं हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कह रहे वक्फ बोर्ड नहीं हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलता रहेगा। और ये धमकी क्यों दे रहे हैं कि शाहीन बाग जैसी सिचुएशन कर देंगे? कोई डरते हैं क्या? आप डरते हैं क्या? कौन डरता है? अर्नब जी आप तो इतने मशहूर पत्रकार हैं, अर्नब जी आप ये बताइए। रंगरेज जी एक मिनट, वो आप बोलिए मुमताज जी बोलिए, मुमताज जी लास्ट वर्ड, मुमताज जी देना, कागज वाली मुमताज जी एक मिनट, मुमताज जी मुमताज जी बोल रहे हैं, मुमताज जी बोल लीजिए, बोल दीजिए। अच्छा मुमताज जी एक मिनट बोलिए ना, रंगरेज जी एक मिनट, एक मिनट। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप कह रहे हो बहुत पावरफुल है वक्फ बोर्ड, यही कह रहे हो ना, कब्जा कर लेगा। था सुप्रीम कोर्ट नहीं, अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट जब तक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भव्य राम मंदिर बना लो, एक मिनट, भव्य राम मंदिर बना लो। इसके अलावा कहा 5 एकड़ जमीन हम दे रहे हैं मस्जिद के। दिया नहीं, कहाँ दिया? कहाँ मस्जिद बनी? कहाँ कुछ बना? यही तो बात है। मंदिर बनवाया हमने, बनाया, आपके पास है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं, आप बनाओ, जगह दिया, योगी सरकार चाहती नहीं चाहती, योगी जगह दिया, लेकिन यही मैं पूरा कहना फेंक चाहता रहे हो, हूं। बनाना ही नहीं है, यही मैं कब्जा करने की आदत है, कोई और कब्जा करने का विचार कर रहे हो, सिर्फ कब्जा करने की आदत है। कुछ नहीं, सुन लीजिए, कागज की बात रंगरेज जी कर रहे थे ना, जब कृष्ण जन्मभूमि पर कागज। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी बना लो सनातन बोर्ड, सारे ladies and gentlemen, I thank you all.